कि दोनों सदनों की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये लोकसभा की तस्वीर देख रहे हैं। लोकसभा में जो सदन की कार्रवाई है वो यहां पर शुरू हो चुकी है। और देखिए, प्रहलाद जोशी केंद्रीय मंत्री वो उन्होंने एक अहम जानकारी साझा की है। किरीट भाई सोलंकी इस वक्त आसन पर मौजूद हैं। और वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में जगदीप धनखड़ बैठे हुए हैं, जहां पर मणिपुर पर चर्चा होनी है। तो आज का दिन संसद के दोनों सदनों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण। इस वक्त जहां एक तरफ लोकसभा में दिल्ली से जुड़ा महत्वपूर्ण विधेयक पेश होना है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी है। लगातार गतिरोध बना हुआ है राज्यसभा में। इस वक्त किस तरीके की तस्वीर है, हलचल है, जरा हम आपको आवाज भी सुनाते हैं। राज्यसभा में इस वक्त जगदीप धनखड़ सभापति क्या कुछ कह रहे हैं। Honorable members, जी देखिए, सभापति क्या करें, सुनाते हैं आपको जरा। received under 176 in terms of the rules, that notice was considered by me and I had accepted the notice, which means short duration discussion on that subject, issues connected with Manipur, is to be taken up. Then the next, one second. The next part of the rule is that date and time had to be fixed in consultation with the leader of the Council of States. Now, I think I had given that ruling. No, Tiruchi Shivai said that I had taken a view on the same issue on 20th of July 2023 in categorical terms. So now the listed business is short duration discussion. It has been indicated. I will come there. You see, with Mr. Jairam Ramesh, once again, your assertion that with respect to one of the notices, there was withdrawal. Fact of the situation is that there has been no such intimation to my secretariat. Therefore, what you indicated on the floor of the House, no, I am on the first point you said. Your far exceeds the number here, sir. 65 MPs have given notice for all the One second. No. Honorable members, would you please take your seat? One second. Take your seat. Honorable members, please. Honorable members, all of us are bound by the rules. And I had considered, mark my words carefully, notices that were given under Rule 176. And those notices emanated from those whose names has been shown in the listed business today, including those who seconded the notice. And that is why I am indicating to honorable members that even on the day I accepted the notice under Rule 176 for discussion on issues connected with Manipur, the government had on that day said, we agree to it. Now the next step was, date and time of that had been fixed in the pre-lunch session. The government is extremely keen. I would therefore take up. I have given. One second. I got your point. I got it. The impression that I have not given a ruling on the 65 notices that had been given under Rule 267, I think you need to go back to the record.
I had indicated that on 20th of July 2023, similar notices had been declined by me. And thereafter, there has not been a single day when such has not been given. That being so, Mr. Siva, Mr. Tiruchi Siva, you are such an experienced man. Notices under Rule 267 have not been admitted by me. They have been declined by me. And इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये दो तस्वीरें संसद के दोनों सदनों की हैं, लोकसभा और राज्यसभा की। राज्यसभा में जहां नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने की सहमति बनी है, ये सभापति की तरफ से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि अब वक्त और समय जो है वो तय किया जाएगा अब से थोड़ी देर में। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में इंतजार किया जा रहा है दिल्ली से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक के पेश होने का। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हैं हमारे साथ और साथ ही साथ देवेंद्र वर्मा जी जुड़ रहे हैं। आप पूर्व प्रमुख सचिव रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा का, विधायी कार्यों का लंबा अनुभव देवेंद्र जी को भी है। एनके सिंह सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, दिल्ली का जो विधेयक है उसको लेकर इतने सवाल क्यों सर, और उस पर इतनी सियासत क्यों? क्या ऐसी पेचीदगियां हैं जिसको लेकर दिक्कत है? एनके सर, देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसमें प्राइमेसी दी गई थी इलेक्टेड गवर्नमेंट को ट्रांसफर एंड पोस्टिंग में, और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था बहुत ही स्पष्ट रूप से कि इलेक्टेड गवर्नमेंट हमेशा प्राइमेसी रखती है इन केसेस में। ये उसने कहा था। सरकार जो ये बिल लाई है, इसके पहले जो ऑर्डिनेंस लाई थी उसका क्लॉज 3 अगर आप देखें तो उसमें प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो सेक्शन 41 एंट्री 41 स्टेट लिस्ट की, उसमें वो पावर्स वो सारे के सारे चले गए थे केंद्र के पास जी। इसको लेके सेक्शन 3 को अब क्या किया है, इस बिल में वो बदल के 3 तो रखा है लेकिन 3 के साथ 3A भी कर दिया है, लेकिन उससे कोई बहुत अंतर पड़ेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो अपोजिशन इसका विरोध करेगा, और मेरे ख्याल से वो जो 41 की एंट्री है उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन कहा था कि भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि क्लॉज 7 के तहत 239A क्लॉज 7 के तहत आप जो पावर्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हैं वो क्लॉज 7 कैसे दे देता है। ये कंट्रोवर्सी थी। तो मेरे ख्याल से बिल जब पास हो जाएगा, लोकसभा में पास होना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। राज्यसभा में पॉलिटिकल इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि अगर राज्यसभा में ज्वाइंटली सारे लोग, जैसा कि कहा जाता है इंडिया है, अगर वो विरोध करते हैं तो उस समय देखना कि कौन कौन विरोध कर रहा है। कांग्रेस ने वैसे कहा है कि हम इस बिल के खिलाफ रहेंगे। पॉलिटिकल मैसेज जाएगा, उस वोटिंग से पॉलिटिकल मैसेज जाएगा कि विपक्ष एकजुट है या नहीं है। लेकिन देवेंद्र वर्मा जी, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से कोई फैसला देता है, उसके बाद क्या संसद नए सिरे से कोई कानून नहीं बना सकती है, कोई नई विधेयक नहीं ला सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करते हुए या अपनी दलीलों के साथ जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मैच ना करता हो? देवेंद्र वर्मा सर। नहीं, निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ऐसे पहले कई उदाहरण है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नलीफाई करने के लिए लॉ लाया गया, लॉ पास हुआ और वो प्रिवेल करता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नलीफाई हो गया। शाहबानो केस में ऐसा ही हुआ था और भी कुछ मामलों में ऐसा हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई कर दिया गया। ये जो विषय है, ये विषय ऐसा है कि ये जो डिवीजन ऑफ पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन से विषयों के ऊपर लॉ सेंट्रल बना सकता है, कौन से के ऊपर लॉ स्टेट बना सकती है और कौन से पर लॉ स्टेट और सेंटर दोनों बना सकती है, लेकिन प्रिवेल वो करेगा जो सेंट्रल बनाएगा जी। अब ये जो बिल आज इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है सेवंथ शेड्यूल जो है, 7th शेड्यूल का जो पार्ट 2 है जी, जिसमें स्टेट्स को पावर है एंट्री नंबर 41 में कि एंट्री नंबर 41 में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विसेज, इसके ऊपर लॉ केवल स्टेट बना सकता है, सेंटर नहीं बना सकता है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको नलीफाई किया तो अभी तो ये मामला क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है जी, ये 5 जजेस की बेंच को रेफर किया हुआ है कि क्या ये सेंटर ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो ये एक इतना लीगल मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल मामला है, जिस पर फाइनल निर्णय तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट देगा। लेकिन अभी स्टेट और सेंटर दोनों, क्योंकि दोनों ही ये तय कर रहे हैं, सेंटर भी कह रहा है कि हम बना सकते हैं ऐसा लॉ और स्टेट कह रहा है कि नहीं बना सकता है। तो ये ऐसा विषय है, इसके ऊपर मैं तो केवल ये कहूँगा
कि निश्चित तौर पर जो तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं सेंटर ने, कि जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, बदले की भावना से ऑफिसर्स को ट्रांसफर किया जाता रहा, जो जांच में जुटे हुए थे उनको ह्यूमिलेशन किया जाता रहा, और इनको बहुत पब्लिसिटी भी की जाती रही। तो आखिर ऐसे चीजों का क्या हल होगा, ये तो अब नई नजीरें बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा की कार्रवाई तो स्थगित हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता दें, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है। हालांकि राज्यसभा एडजर्न होने से पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने यह साफ कर दिया कि मणिपुर के मुद्दे पर नियम 176 के तहत चर्चा होगी, यानी वो नियम जिसमें शॉर्ट अवधि के लिए चर्चा होगी, वो नियम जिसके तहत वोटिंग नहीं होगी। यह सभापति ने स्पष्ट कर दिया मणिपुर के मुद्दे पर। लेकिन हम बात कर रहे हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली को लेकर एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश होना है। लोकसभा की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाएंगे। हमारे सहयोगी मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, तनातनी लगातार नजर आ रही है दिल्ली से जुड़े उस विधेयक पर, और उससे ज्यादा 2024 के मद्देनजर इस विधेयक को काफी महत्वपूर्ण तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पे तनातनी दोनों ही पक्षों की ओर से दिखाई दे रहा है, और 2024 के मद्देनजर आपने महत्वपूर्ण बात ये कही है कि बहुत महत्वपूर्ण ये बिल है। लेकिन जिस तरीके से लगातार मणिपुर को लेकर देखिए हिंसा हो रही है, और मणिपुर में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर जिस तरीके से सदन के भीतर हंगामा, दोनों ही सदनों में हंगामा हो रहा है, और विपक्षी दलों का यानी इंडिया के घटक दलों का कहना है कि मणिपुर हिंसा पर पहले जो है शॉर्ट टर्म पे नहीं बल्कि विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। राज्यसभा में लगातार देखिए थोड़ी देर पहले हंगामा हुआ है, और विपक्षी दलों का कहना है कि नियम 267 के तहत विस्तृत चर्चा जो है सदन के भीतर होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आके जवाब देना चाहिए दोनों सदनों में, और इसको लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। आपको बता दें सुबह भी एक बड़ी बैठक हुई थी, सोनिया गांधी उस बैठक में मौजूद थी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो सहयोगी दल है वो मौजूद थे। लेकिन अभी जो हंगामा हुआ है उसको लेकर लगातार एनके सर बहुत संक्षेप में, हालांकि देवेंद्र जी भी बेहतर जवाब देंगे। एनके सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, 176 के तहत हो, 267 के तहत हो, ये कौन तय करेगा सर? ये तो सभापति तय करेगा। देखिए, सभापति तय करता है, लेकिन वो कुछ रूल्स होते हैं जिसके तहत तय करता है। अब अगर मैटर बड़ा है और ये कहा जा रहा है कि साहब 52 टोटल 51 एप्लीकेशन आई थी, वो 267 के तहत आई थी, उसको स्पीकर, उसको राज्यसभा अध्यक्ष चेयरमैन ने उसको संज्ञान में नहीं दिया। ठीक है, फाइनल तो हमेशा रहेगा सभापति का, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसी बात की तो लड़ाई है ना, विपक्ष ये कह रहा है कि साहब हमारी बात अनसुनी की गई, हम लोगों ने पहले दिया 51 एप्लीकेशंस थी, लेकिन उसको नहीं तरजीह दिया गया, और 176 में इसको कंसीडर किया गया है जो शॉर्ट ड्यूरेशन है। अपोजिशन का ये कहना है कि बहुत बड़ा इशू है, लिहाजा इसको निर्बाध रूप से और एक बड़ा डिस्कशन इस पे होना चाहिए, ये उनकी मुराद। ठीक है। तो ये अपनी अपनी दलीलें दी जा रही हैं, लेकिन इस बीच हम तस्वीरें लोकसभा की दिखा रहे हैं। लोकसभा में चर्चा लगातार चल रही है, राज्यसभा बाधित हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, और क्या कुछ संविधान